In the previous video, we have studied about the two models. One is the sandwich model, second is the unit membrane model. Both the models was rejected due to criticism. Now the most accepted model, that is called fluid mosaic model. This model is given by the Singer and Nicholson. Singer and Nicholson in 1972. This model is widely accepted because this model explains all the characteristics of the plasma membrane. It is the most accepted model. According to this model, cell membrane is made up of lipids, proteins, like the sandwich and unit membrane model. In addition to these, there are the third component present, that is called carbohydrate. Lipids, as you know, it is present in the form of the phospholipid. It consists of two parts. One is the head, that is the polar part. Second tail, that is the non-polar part. Or these are present phospholipid present in the form of phosphoglycerides. And arrange as a pi layer. Lipids show two types of the movements. One is the transition movement. Second movement, it is called the flip-flop movement. Transition movement is the movement of the phospholipid molecules in the same layer. Transition movement क्या है आपकी movement of phospholipid molecules in same layer. But flip-flop movement is the movement of phospholipid in different layers, या between two layers. Because they are arranged in the two layers. The lipids which are present are of two types. One is the lecithin, second is the cephalin. Lecithin is present on the outer side और cephalin प्रोटीन कहाँ present होते हैं? Inner side. Now the protein part. Protein part is given. Here the two types of the protein. One protein is called the peripheral protein. Second type of the protein, that is called integral protein. Peripheral protein, they lie on the surface of membrane. ये कहाँ लाई करते हैं? सरफेस ऑफ मेम्ब्रेन पे. और ये आउटर भी हो सकते हैं और कैसे होते हैं? इनर. दे आर लूजली अरेंज्ड सो कैन बी एक्सट्रैक्टेड. यानी कि क्या है? इनको हम एक्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं, बाहर भी निकाल सकते हैं इससे एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन से. बट इंटीग्रल प्रोटीन्स, दे आर द बरीड इन बाइलेयर. बरीड बाइलेयर में क्या है? या तो पार्शियली या थोड़े से अम्बेड है, या ये कैसे हैं आपके? कंप्लीटली. ये कंप्लीटली यदि क्या है? completely buried in bilayer में these are called tunnel proteins.
द प्रोटीन्स not show flip-flop movement due to large size. इनका साइज बड़ा होता है इसीलिए ये फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट को शो नहीं करते, बट ये अपनी लेटरल मूवमेंट को शो कर रहे हैं। वो किस में कर रहे हैं? लिपिड में कर रहे हैं। द फ्लूइड नेचर to the model is given by lipid part. It provides quasi-fluid nature. कौन सी नेचर दे रहा है ये? Quasi-fluid nature to membrane. Due to this membrane fluidity, it helping the interaction of molecules within the membrane. ये molecules क्या है? जो ये fluid हम कह रहे हैं कि ये फ्लूइडिटी जो प्रोवाइड कर रही है वो कौन पार्ट कर रही है? लिपिड। फिर देखो पीछे हमने किया था कि क्या है आपका लास्ट मॉडल में सैंडविच मॉडल, उन्होंने कहा कि लिपिड सोल्यूबल मॉलिक्यूल्स पास कर जाते हैं बट वाटर सोल्यूबल मॉलिक्यूल्स पास नहीं करते। और वाटर सोल्यूबल मॉलिक्यूल्स को पास करने के लिए ये मॉडल एक्सेप्टेड था, क्योंकि वाटर सोल्यूबल मॉलिक्यूल जब पास करते हैं तो वो किसकी वजह से करते हैं? इसमें टनल प्रोटीन की वजह से करते हैं। इसने इसकी इस नेचर को भी क्या किया? एक्सप्लेन। जो लिपिड पार्ट होता है ये कितने परसेंट होता है? मोस्टली 20 से लेके 79% है, बट ये रेशो फिक्स नहीं है। सेल टू सेल क्या करती है? वैरी। प्रोटीन के अंदर ये 20 से लेके कितना लाई करता है? 70% करता है। कार्बोहाइड्रेट जो प्रेजेंट है वो 1 to क्या होते हैं? 5% प्रेजेंट होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स 1 to 5 है। मेनली जो ये कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं कैसे होते हैं? ओलिगोसैकेराइड्स होते हैं। दे वर डिस्कस्ड इन डिटेल इन द बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर। और इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट कौन कौन से पार्ट होते हैं? जैसे हेक्सोज भी हो सकता है इसके अंदर, फ्रक्टोज भी इसके अंदर क्या होता है? प्रेजेंट होता है। अब ये कार्बोहाइड्रेट पार्ट्स प्रोटीन के साथ भी अटैच होते हैं और लिपिड के साथ भी। अब देखो यदि हम इसका स्ट्रक्चर करें किसका? फ्लूइड मेजरिंग मॉडल का, वही फॉस्फोलिपिड। इसमें कितनी लेयर्स की बनी हुई है? 2 लेयर्स की बनी हुई है। दिस वन वही कैसे अरेंज है? हेड पार्ट बाहर की तरफ है ऑन द आउटर साइड, टेल पार्ट कहाँ प्रेजेंट है? इनर साइड पे प्रेजेंट है। फिर तो इसके अंदर क्या है? हेड पार्ट टेल को प्रोटेक्ट करने में हेल्प कर रहा है क्योंकि ये कैसा है? हाइड्रोफोबिक। और ये क्या है? आपकी फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड के बीच में जो लेयर्स में इंटरेक्शन है वो कौन सी है? भाई वैन डर वाल इंटरेक्शन। फोर्सेस रोल प्ले करती है। अब देखो इसके अंदर जो प्रोटीन है वो 2 टाइप्स के प्रोटीन बताया। एक प्रोटीन आपको कौन सा बताया? पेरिफेरल। और दूसरा आपको कौन सा बताया? इंटीग्रल। जो इंटीग्रल प्रोटीन प्रेजेंट है ये कहाँ प्रेजेंट है? लिपिड्स की दोनों 5 लेयर्स में प्रेजेंट है। दिस वन प्रोटीन, ये वाला प्रोटीन कौन सा है? इंटीग्रल। और इस प्रोटीन को हम कौन सा बोलते हैं? टनल प्रोटीन। इसको हम यहाँ क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये दोनों बाइलेयर में क्या कर रहा है? स्पैन कर रहा है। बट कुछ ऐसे भी आपके इंटीग्रल प्रोटीन्स होते हैं जो एक ही लेयर में क्या करते हैं? स्पैन करते हैं, लाइक दिस। और जो आपके पेरिफेरल प्रोटीन है जो लूजली अरेंज्ड है, तो ये वाले क्या है? या तो आउटर में प्रेजेंट है और ये क्या प्रेजेंट है? आपके इनर साइड पे भी प्रेजेंट है और ये सरफेस पे क्या होते हैं? प्रेजेंट। इसीलिए इन्हीं प्रोटीन्स को हम क्या कर लेते हैं? एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। यानी कि क्या है? ये वाला मॉडल जो एक्सेप्ट किया गया क्योंकि इसने हर डायनेमिक नेचर को भी एक्सप्लेन किया, एबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन टू अलाउ द सब्सटेंस यानी ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है उसको भी एक्सप्लेन किया। अब देखो इसके अंदर क्या है? ये लिपिड पार्ट है। हम कह रहे हैं कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है, या तो ये कार्बोहाइड्रेट किस पे प्रेजेंट है? लिपिड पार्ट पे प्रेजेंट है, या ये कार्बोहाइड्रेट जो प्रेजेंट है ये क्या है? आपके प्रोटीन पार्ट पे है। यदि ये कार्बोहाइड्रेट किस पे प्रेजेंट है? प्रोटीन पार्ट पे प्रेजेंट है, तो इसे हम बोलते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। और यदि ये लिपिड के ऊपर प्रेजेंट है तो इसे हम क्या बोलते हैं? ग्लाइकोलिपिड। यानी कि ये सिर्फ कौन सी साइड पे प्रेजेंट है? आउटर पे है। इनर साइड पे हमने कोई भी कार्बोहाइड्रेट को शो नहीं किया। यानी कि किस फॉर्म में प्रेजेंट है? 2। एक आपको बताया ग्लाइकोप्रोटीन,
सेकंड मैंने क्या बताया, ग्लाइकोलिपिड। और दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, ग्लाइकोकैलिक्स। हमने पहले भी किया था प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर कि ग्लाइकोकैलिक्स क्या है, एक आपकी लेयर है, आउटर मोस्ट कोट है, और जो क्या करती है, एंटीजेनिसिटी प्रॉपर्टी देती है। जैसे हमारा ब्लड ग्रुप क्या है, ए बी ओ आप बोलते हो तो वो एंटीजेंस है, वो एंटीजेनिसिटी प्रॉपर्टी दे रहा है, वो ग्लाइकोकैलिक्स है। बैक्टीरिया हमारी बॉडी में जाते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, अटैच हो जाते हैं सेल के साथ, तो उसको एडिशन नेचर देती है, वो भी कौन देती है, ग्लाइकोकैलिक्स। यानी कि कार्बोहाइड्रेट पार्ट इसमें प्रेजेंट है, कार्बोहाइड्रेट इज नॉट प्रेजेंट इन द मॉडल्स इन द सैंडविच एंड यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। और इसके अकॉर्डिंग क्या है, जो प्रोटीन पार्ट है, देखो फ्लूइडिटी नेचर जो प्रोवाइड की क्वासी फ्लूइड नेचर दैट इज गिवन बाय द लिपिड पार्ट, एंड दिस फ्लूइडिटी अलाउ द लेटरल मूवमेंट्स ऑफ द प्रोटीन। यानी कि क्या, ये प्रोटीन पार्ट है, ये प्रोटीन मूवमेंट करके आपके यहाँ भी जा सकते हैं। अब हमने कहा दो तरह की मूवमेंट, एक ट्रांजिशन मूवमेंट है और एक मूवमेंट आपकी कौन सी है, कौन सी मूवमेंट, फ्लिप फ्लो। ट्रांजिशन मूवमेंट है तो ये प्रोटीन मूव करके यहाँ से यहाँ आ गया, ये वाला फैट यहाँ से यहाँ आ गया, और ये मूव करके इधर से इधर भी जा सकता है। यदि हम क्या करें, फ्लिप फ्लो मूवमेंट को शो करें, ये वाला फैट पार्ट आपका लिपिड पार्ट मूव करके क्या आ गया, इस लेयर में। तो यानी लिपिड तो दोनों तरह की मूवमेंट को क्या कर रहा है, शो कर रहा है, बट प्रोटीन पार्ट क्या कर रहा है, सिर्फ ये लेटरल मूवमेंट्स को साइड से क्या कर जाता है, मूव कर जाता है। और ये किस में कर रहा है, लिपिड्स की लेयर में। यानी कि आप देखो इस तरह से लिपिड तो यहाँ पे क्या बना रहा है, सी बना रहा है, यानी समुद्र जो बना हुआ है वो किसका बना हुआ है, लिपिड का। और इसके अंदर जो फ्लोट कर रहे हैं वो कौन कर रहे हैं, प्रोटीन्स कर रहे हैं। और ये वाले प्रोटीन आपके कौन से बताए थे मैंने, पेरिफेरल। और दूसरे वाले ये वाले प्रोटीन कौन से थे आपके, ये वाले दोनों प्रोटीन कैसे थे, इंटीग्रल थे। यानी कि क्या है, प्रोटीन्स इसके अंदर किसका बिहेव कर रहे हैं, आइसबर्ग का। यानी कि जो सी है वो तो किसका बना हुआ है, लिपिड का। इट मींस प्रोटीन icebergs floating in the CO lipids। यानी कि क्या है, पूरा ये स्मूथर मेम्ब्रेन का तो किससे बना हुआ है, दैट इज द लिपिड से, और प्रोटीन पार्ट्स इसके अंदर क्या कर रहा है, फ्लोट कर रहा है। अब देखो ये मॉडल क्यों सेटिस्फाइड हुआ, क्योंकि इस मॉडल ने हर कैरेक्टरिस्टिक्स को क्या किया, एक्सप्लेन किया। फर्स्ट इसने कहा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन डायनामिक है, वो भी किया, क्योंकि आपको पता है मूवमेंट हो रही है किसकी, आपकी प्रोटीन पार्ट की और लिपिड की, जिसकी वजह से इसकी स्ट्रक्चर में क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है। फ्लूइडिटी नेचर लेटरल मूवमेंट को अलाउ कर रहा है किसकी, प्रोटीन की, जिसकी वजह से ये हेल्प करती है सेल मेम्ब्रेन, सेल ग्रोथ में, सेल इंटरेक्शन में, एंडोसाइटोसिस में, सबके अंदर। और इसके अकॉर्डिंग प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड इनकी कंपोजिशन भी क्या हो रही है, आपकी चेंज हो रही है। इसमें प्रोटीन्स क्या करता है, जो फ्लूइडिटी नेचर प्रोवाइड कर रहा है वो लिपिड कर रहा है, और प्रोटीन पार्ट इसके अंदर कैसे कैसे रोल प्ले करता है। प्रोटीन इसमें स्ट्रक्चरल प्रोटीन का काम करता है, स्ट्रक्चरल प्रोटीन का बिहेव करता है प्रोटीन पार्ट, स्ट्रक्चरल प्रोटीन। तो ये क्या बनाते हैं, बैकबोन बनाते हैं। ये बैकबोन किसकी बनाते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। सेकेंडली इसमें किसका काम कर रहा है, कैरियर का, कैरियर प्रोटीन का काम कर रहा है, तो किसमें हेल्प कर रहा है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस में। थर्डली किसका काम करता है, एंजाइम्स का। एंजाइम्स कैसे होते हैं, कैटालिटिक प्रोटीन होते हैं। कैटालिटिक वो होते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करते हैं, इंक्रीज। तो इस तरह से क्या है, जो स्ट्रक्चरल नेचर प्रोवाइड कर रहा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, वो कौन कर रहा है, प्रोटीन पार्ट कर रहा है। फ्लूइड नेचर जो प्रोवाइड कर रहा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, वो कौन कर रहा है, लिपिड। यानी कि सैंडविच मॉडल ने कुछ भी आपकी क्या है, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस सबको डायनामिक नेचर को एक्सप्लेन नहीं किया, कैसे सारे सब्सटेंसेस मूव करते हैं। इस मॉडल ने हर तरह का बताया कि हर तरह के सब्सटेंसेस हैं, चाहे लिपिड सोल्यूबल है चाहे आपके क्या फैट सोल्यूबल, सारे सब्सटेंसेस इसमें क्या कर जाते हैं, मूव कर जाते हैं। बोथ द नेचर इज गिवन बाय द लिपिड एज वेल एज ए प्रोटीन। एंटीजेनिसिटी प्रॉपर्टी इज प्रोवाइडेड बाय द कार्बोहाइड्रेट पार्ट। दिस इज द मोस्ट एक्सेप्टेड model, but the membrane is here asymmetrical because the lipids which are present on the outer or inner side, they are not same. Amount
जो किसकी आपकी एंड टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स दैट इज आल्सो नॉट सेम, दीज आर द डिफरेंट. कार्बोहाइड्रेट दीज आर प्रेजेंट ऑन द आउटर साइड, सो इट इज आल्सो डिफरेंट. मेम्ब्रेन यानी कि एसिमेट्रिकल है. एसिमेट्रिकल किसकी वजह से हुई आपकी? 3 प्रॉपर्टीज. वन इज ड्यू टू लिपिड, डिफरेंट लिपिड ऑन डिफरेंट साइड्स. प्रोटीन, प्रोटीन अमाउंट एंड टाइप ऑफ प्रोटीन आर डिफरेंट. और थर्ड वन इज द कार्बोहाइड्रेट, बट इट इज द मोस्ट एक्सेप्टेड क्योंकि प्रोटीन आर प्रेजेंट ऑन द बोथ साइड. यहाँ मुझे एक वर्ड आया तो वो क्या आया? पैटर्न की वजह से आया. यानी कि इसको जो पैटर्न प्रोवाइड कर रहा है, मुझे एक वर्ड किसके लिए आता है? पैटर्न के लिए आता है. जो इस मेम्ब्रेन को क्वासी-फ्लूइड नेचर तो लिपिड दे रहा है, बट जो ये मुझे एक पैटर्न जो इसको दे रहा है वो कौन दे रहे हैं? इंटीग्रल प्रोटीन्स दे रहे हैं. सो दिस मॉडल इज द वाइडली एक्सेप्टेड. इट हैज नो क्रिटिसिज्म.